After Bengaluru and Uttar Pradesh, Delhi government has decided to make Delhi pothole-free by Diwali and repair 1,400 kilometers of roads managed by the PWD department by the end of October. Now, the Chief Minister, Atishi in this case, has divided the responsibility amongst top Aam Aadmi Party leaders, while Atishi herself is looking into the situation in South and Southeast Delhi. Saurabh Bharadwaj is taking care of East Delhi. Gopal Rai, a senior minister, is going to get repair work done in Northeast Delhi. Kailash Gehlot, also a senior minister in Atishi cabinet, is going to manage West and Southwest Delhi, and then there is Imran Hussain for Central and New Delhi, and Mukesh Alawat for North and Northwest Delhi. Let's look at what really is the plan. The Delhi cabinet ministers are all out on the streets early in the morning to inspect the poor road conditions in the capital city. I am right now in Patparganj, East Delhi, and I'm joined by Delhi Minister Saurabh Bharadwaj, and he was also accompanied by former Deputy Chief Minister Manish Sisodia, and they have been inspecting this entire stretch, which is a Patparganj main road. As you can see, it's a bumpy ride for the vehicles here, and this has been a long delayed process. Which all areas did you inspect here in East Delhi? All the ministers of Delhi cabinet are on ground today. I was accompanied by our ex-Deputy Minister, Chief Minister, Mr. Manish Sisodia, to inspect the roads of East Delhi, and we are particularly in this area of Patparganj, Mandavli, Ganesh Nagar. For last few months, there has been heavy rainfall in Delhi, and bitumen roads, the blacktop roads, the tarpaul roads can tolerate everything, but they cannot tolerate water. So you can say that water stagnation is the worst enemy for any blacktop road, and wherever there was a stagnation of water, the roads have been destroyed. Right. So is it just the main road stretch? You said that this is a 2-kilometer stretch where there is only 250 meters of patchwork, broken patchwork. But then there are also the nooks and corners inside the residential areas. So all these roads belong to different agencies. The main roads per se, which are wider than 60 feet, come under the purview of PWD. And the first target is to fix all the PWD roads, all the broad roads, the main roads. And the target is in the month of October, we should fix all the potholes on these roads. Will there be like road carpeting? Yeah, there will be road carpeting. There will be, wherever there is a need for repair, there will be a repair. Where there will be need for patchwork, we will do a patchwork. Right. So whatever is needed, we will do. सर, एक नया मुद्दा अब उठाया गया है इनफैक्ट आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो है टूटे हुए सड़कों का। एमसीडी में मेयर जो हैं शैली ओबरॉय, उन्होंने अब कमिश्नर को भी लेटर लिख के कहा है कि जो रोड्स हैं उन्हें रिपेयर करने की ज़रूरत है। आज हमने देखा कि चीफ मिनिस्टर के साथ साथ तमाम मंत्री जो हैं वो भी पहुंचे हुए थे रोड इंस्पेक्शन पे। आप एलओपी हैं सर, आप इसे कैसे देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आग लग जाए उसमें आप ये प्लानिंग करो कि हम कुआं खोदेंगे। आपके पास पूरा 1 साल था, शैली ओबराय जी पिछले 1.5 साल से हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप कितनी बार रोड के ऊपर आए? अगर आप रोड के ऊपर आए, आपके साथ अधिकारी होते हैं, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है। जब भी महापौर महोदय आएंगे उनके साथ सारे बड़े अधिकारी होंगे, कमिश्नर साहब होंगे, डीसी साहब होंगे। आप हमें बताइए कौन से अधिकारी को आपने कहा कि रोड के ऊपर गड्ढा है? अगर गड्ढे के ऊपर आपके अधिकारियों ने काम नहीं किया तो इट मीन्स आप में कॉम्पिटेंसी नहीं है काम करवाने की। केवल एसी कमरे में बैठकर चिट्ठी लिखने से काम नहीं होता कि जी आज आपको 1.5 साल के बाद याद आ गया कि क्योंकि आपने देख लिया कि अब विधानसभा आने वाली है, विधानसभा में आपको वोट पड़ने नहीं है। जो आपके सीएम थे वो जेल में थे, वो जेल से बाहर निकले, दूसरी सीएम बना दी। अब इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं, अब ये रोना शुरू कर देंगे। इनकी बहुत अच्छी प्लानिंग होती है, जब ये काम में फेल होते तो ये रोना शुरू कर देते हैं। अभी वो केजरीवाल जी ने रोना शुरू कर दिया, वहाँ से आतिशी जी ने रोना शुरू कर दिया। अब हमारी महापौर भी कम ड्रामा कैसे कर सकते हैं? शी इज आल्सो ड्रामा क्वीन। उन्होंने कहा ये मेरे दोनों नेता रो रहे हैं तो मैं भी रोना शुरू कर दूं। तो क्या ये पॉलिटिकल ड्रामा है? बिल्कुल, ये पॉलिटिकल ड्रामा है। अगर इनको लगता है रोड ठीक नहीं है तो मैदान में आए, मैदान में सीएम को भी लाएं, सबको लाएं और अधिकारियों को दिखाएं कि इस रोड को रातों रात सही करें। क्यों नहीं ठीक होगा? आज तो वो लोग इंस्पेक्शन करने के लिए ग्राउंड, ये जिंदगी भर इंस्पेक्शन करेंगे या कुछ काम भी करेंगे? केवल जब भी विधानसभा का इलेक्शन आता तो इंस्पेक्शन पे चले जाते हैं। तो ये पिछले 4 साल से क्या कर रहे थे, कम से कम ये बताइए दिल्ली की जनता को।
आज अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश पर मैंने और मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने पूर्वी दिल्ली की कुछ सड़कों का निरीक्षण किया है, उनका जायजा लिया है और देखा है कि कई सड़कें खराब हैं। अब इसको ठीक किया जाएगा, इस सड़क को भी जल्दी ठीक किया जाएगा। जिस तरह से पूरी दिल्ली में बीजेपी वालों ने सड़कों की हालत खराब की है, दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए उन्होंने इस तरह का माहौल बनाया, इस तरह के वो कि काम रुक गए, लोगों को परेशान करने के लिए काम रोके। लेकिन अब केजरीवाल जी आ गए हैं, अब ये काम भी होगा, ये सड़क भी जल्दी ठीक हो जाएगी और काम भी जल्दी जल्दी होंगे। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लोग और आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हों या आतिशी हों, दिल्ली की जनता को बेवकूफ समझते हैं। दिल्ली की जनता देख रही है कि ये सब कुछ जो एक्सरसाइज हो रही है, ये इमेज मेकओवर की कोशिश है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के अंदर इनके नेता जेल में, आज भी वो भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो इमेज मेकओवर की कोशिश है, इस चक्कर में अरविंद केजरीवाल साहब और मनीष सिसोदिया जी अपनी सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं। जब वो जेल के अंदर थे, अरविंद केजरीवाल साहब आप कह रहे हैं कि जब मैं जेल में था तो दिल्ली में गड्ढे हो गए और दिल्ली की सड़कें बहुत खराब हो गई, काम नहीं हुआ। उसका पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कौन था? आतिशी खुद थी, जो जिसको आपने मुख्यमंत्री बनाया है।